This conference will now be recorded. Just चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट सेशन में बच्चों हमने शुरू किया था द enthalpies of a reaction. We discussed the standard state of a substance. What is standard state? किसी भी substance की most commonly occurring state at 1 atmospheric pressure. हालांकि हम टेम्परेचर को देखते हैं बट टेम्परेचर को हम 298 कोई बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर को देखो, वाटर 0 डिग्री से लेके मे बी 400 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड ही है, तो वी नॉर्मली सी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट हाँ, ओल्ड स्कूल में हम टेम्परेचर को भी स्टैंडर्ड स्टेट में देखते थे। बट रिमेंबर, कार्बन की डायमंड, ओजोन, द ब्रोमीन की गैस, द आयरन की गैस इज नॉट द स्टैंडर्ड स्टेट. We need it very often, so that is the reason that we have discussed it. The standard enthalpy of formation is when 1 mole of a substance is formed from its element. Please ध्यान दीजिएगा, from its elements. 1 mole, all the substances being in their standard state, the energy change is known as the standard enthalpy of formation. Remember, the enthalpy of a formation of a standard element is always taken as 0. ये convention है, हम सबके ऊपर लागू होगी. Once you know the heat of formation for substances, right, then we can calculate the heat of a reaction as the difference between heat of formation of product minus heat of formation for reactants. And the substances which cannot be formed by direct combination of their element, heat of formation has still not been discussed with you people कि कैसे निकालते हैं बच्चों, ये हमने अभी आपसे डिस्कस नहीं किया। हमने एक और हीट ऑफ रिएक्शन डिस्कस की थी, एंथैल्पी डिस्कस की थी। आप हीट कीजिए, एनर्जी कीजिए, एंथैल्पी कहिए, वो सब एक ही बात है। द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, रिमेंबर 1 मोल, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो 1 मोल, जिसके लिए तुम डिफाइन कर रहे हो, कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करूं, जो कि हो जाएगा, राइट, this is never ever going to be known as the heat of combustion. You can simply call it heat of reaction. अगर मैं किसी तरीके से यस मैं कर सकता हूं, मैं इसको कार्बन एंड वाटर में कन्वर्ट करूं, तो मैं इसको हीट ऑफ कंबस्शन नहीं कह सकता हूं. It should be taken care, it is going to be completely burnt. That is the point, right? Everybody does not recognize the heat enthalpy. So we define the calorific value when 1 gram of a fuel is completely burnt in excess of air. Remember, as the molar mass increases, the calorific value decreases, but the heat of combustion always increases, because ये mass का function होता है, amount of substance का function होता है. Hydrogen is the best fuel. It gives about 3 times the energy as given by 1 gram of methane. But still we have our problems, that why we are not able to use hydrogen as the fuel. The heats of solution and heats of hydration. When definite amount of water, it is hydration. You can also call solvation. But
when the water is a solvent, we call it hydration, dear. And when excess of liquid is taken, you can call it heat of solution. And that can be taken as from the hydrated or crystalline salt as well as the solid substance. आप दोनों को देख सकते हैं, दोनों चल सकते हैं बेटे, कोई जरूरी नहीं है कि आपने प्योर सॉलिड को ही लेना है. So this is dear what we discussed. So let's continue from where we left in the last session. So let's start with heats of phase change. What are the phases, dear? The phases are three phases of the substance: solid, liquid, and gas. The heat of fusion, पिघलना, fusion का मतलब पिघलना, that is the heat change when 1 mole of a solid changes to its liquid state at its melting point. सारी चीजें ध्यान है. 1 mole solid changes to liquid state at its melting point. वो किसी और टेम्परेचर पे भी पिघल सकता है, but that will not be known as a standard heat of fusion. आप पानी को आइस लीजिए और आप उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे पिघला दीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस पे, so that is definitely melting, but that is not its melting point. So we will not call it heat of fusion. Heat of fusion जब वो 0 डिग्री सेल्सियस अपने melting point पे. And all substances have fixed heat of fusion. For example, जब water solid पिघलेगा अपने melting point पे, उसको 6 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है. What? आप देखो ना, अगर आपने पिघलाना है तो एनर्जी की जरूरत है. आपके पास हाइड्रोजन ऑक्साइड सॉलिड है, तो जब आप इसको पिघला रहे हैं बच्चों, तो एनर्जी इज नीडेड. हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन को FUS लिख दीजिए, क्योंकि अकेला F हम फॉर्मेशन के लिए ले चुके हैं. कितनी है बच्चों? +6 है ना जी. अब ध्यान से देखो, आप लोगों ने देखा है, अगर मैं वाटर लिक्विड को वाटर सॉलिड में बनाऊं, तो it will be, the heat will be -6 किलोजूल पर मोल. क्या इन दोनों चीजों में फर्क समझ आया? इधर the heat is needed, endo, and इधर heat is taken out, exo. समझ पा रहा है? तो आपके रेफ्रिजरेटर में, द फ्रिज के अंदर, आप वाटर लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो बच्चों? सॉलिड. तो हियर द एनर्जी इज यस गिवन आउट. हर समझ पा रहा है बेटे? द पॉइंट लिक्विड से सॉलिड, आपके रेफ्रिजरेटर में यही तो हो रहा है. तो हीट इज गिवन आउट, हम उसमें से एनर्जी खर्च करके कंप्रेसर के रास्ते से बाहर निकाल रहे हैं. ये बात तो छोटी छोटी होगी, बट ये आगे चल के आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके एज में फर्क डालेगी. आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट वेयर आई स्ट्रेस्ड अपॉन. तो जहां पे आप इसको कह सकते हैं हीट ऑफ फ्रीजिंग, पहले वाले को, राइट? So it is going to be -6 kilojoule. If the water freezes, then the process is reversed and equal amount of heat is evolved. And it may be noted that the enthalpies of fusion give an idea about the nature of the solid and magnitude of forces acting between the particles. The solids such as oxygen, H2S, CCl4, these are molecule covalent होते हैं ये. They have low enthalpy of fusion because of forces of attraction between these molecules are weak. याद नहीं करना,
O2 के लिए पॉजिटिव 0.45, positive 2, positive 2.5. On the other hand, NaCl, MgCl2 have high enthalpy of fusion because they have strong electrostatic force of attraction. You understand? NaCl, ionic compound, positive 29. Values नहीं देखनी है, बस मैग्नेट कंपेयर करना है. Heat of fusion 43. आयनिक सब्सटेंसेस को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड को पिघलाने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए है. डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट? जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी उतनी ही ज्यादा वो आसानी से पिघलेगा. नाउ द सेकंड हीट ऑफ फेज चेंज. अगर आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करें, the process will be known as vaporization. Remember the boiling point. अगर आप किसी भी और टेम्परेचर पे, अरे वाटर तो मेरे पास ये पानी की बोतल पड़ी है, मेरे यहाँ पे एक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, अभी भी वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. So that is vaporization, but that is not a standard. Standard हमें फिक्स करनी पड़ती है बेटे. So when 1 mole of a liquid converts into gas at its boiling point at 1 bar pressure, the heat change is known as the heat of vaporization. अब देखो बेटे, solid से liquid, liquid से gas, the delta H is positive. The delta H is positive. मतलब energy is what needed. But at the same time, अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें, दैट इज गैस स्टीम, पानी का केस लेते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करें तो यस पूरी उसका डेल्टा एच क्या होगा डाली? नेगेटिव. और लिक्विड से सॉलिड पे करोगे तो डेल्टा एच हमारा क्या होगा? नेगेटिव. सेप्ट को पकड़ो बेटे, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. अब एक वैसे ही इंटेलिजेंस की बात करते हैं. आपके सामने कहते हैं स्टीम बर्न्स आर मच मोर डेंजरस देन हॉट वाटर बर्न्स. ये मेरी केमिस्ट्री नहीं है, बट ये जनरल नॉलेज है, ये एप्लीकेशन है. ये जो था ये नॉलेज है, रट लो, जितना मर्जी कर लो, रटले रहो. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये क्या है? एप्लीकेशन. दिस इज फॉर सम स्पेशल स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर ऑर्डिनरी स्टूडेंट. जस्ट इमेजिन, ये हमने एक ईटी का हाथ बताया है, ईटी का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का हाथ ले लिया है. मैं नहीं, सपने में भी नहीं सोचूंगा कि हम में से किसी को स्टीम का सामना करना पड़े. अब यहाँ पे स्टीम आती है. स्टीम, स्टीम की फिजिकल स्टेट क्या है? गैस. तो जब वो स्किन के टच में आती है, जब वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है. पहली बात, स्टीम का टेम्परेचर कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही होगा. यस. दूसरी चीज, जब स्टीम कन्वर्ट होगी लिक्विड में, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं. ये तो नहले पे देला है. सो एक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था, दूसरा टेम्परेचर को जलाएगा तो दिस विल लीव, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. परमानेंट स्कार्स ऑन स्किन डिपेंडिंग अपॉन डैमेज कितनी हुई थी. दिस इज इरिवर्सिबल. स्किन हील नहीं करती है. तो आपने बचपन में सुना होगा, किसी छोटे बच्चे के ऊपर कोई पानी का कप गरम या चाय का कप गिर गया, दैट इज अ परमानेंट स्कारिंग, माय डियर फ्रेंड्स.
मेक श्योर तुम इसको समझो, राइट? टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट इज द स्टोरी। अब दूसरी तरफ देखो, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। अरे फ्यूल जला है ना, ग्लूकोज जला है, आपके मसल ने काम किया है। तो नेचर ने एक प्लानिंग की है, वो वाटर लिक्विड दैट इज पसीने के रूप में परस्पायर, राइट, परस्पिरेशन आपकी स्किन के ऊपर ले आती है। अब वो वाटर लिक्विड से वेपराइज करती है। इधर डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव, लिक्विड से गैस। और ऐसा करने से बेटे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, राइट? और टेम्परेचर कम होता है और हम बच जाते हैं। अगर ये किसी को पसीना नहीं आता है, इवन देन दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस। वैसे भी समझो ना, इसके लिए एनर्जी इज पॉजिटिव। एनर्जी क्या है? नीडेड है। वो एनर्जी, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, वो कहाँ से एनर्जी गई है? आपकी बॉडी से गई है। सो दैट इज द बेस फंडामेंटल्स ऑफ दीज थिंग्स। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो भी बहुत ज्यादा है, तो ये यहाँ पे हमें काम करती है। वही कॉन्सेप्ट, the enthalpy of vaporization of ethyl alcohol, तो याद नहीं करना, at 334 Kelvin उसका boiling point हो गया, is 30.5 and benzene is 30.8. The enthalpy of vaporization also gives an idea about magnitude of forces. The greater the value, the more will be the strength of the bond. For example, strong hydrogen bond between water molecules hold them tightly. For an organic liquid such as acetone, the intermolecular dipole-dipole interactions are significantly weaker. Thus, it requires less heat to vaporize 1 mole of acetone than 1 mole of water. समझ आया? वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, एसीटोन, ये the nail polish remover. This has simply dipole-dipole interactions. So this is going to be better, stronger intermolecular force. This is in comparison weaker force. So therefore this will have more boiling point, more heat of vaporization, and this will have less boiling point. This will have lesser the heat of vaporization. Do you understand? Concept को समझ पा रहे हो बच्चों? Now watch something else. Standard enthalpy of sublimation. What is sublimation? Directly solid का, right, एक सेकेंड, डायरेक्टली सॉलिड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट हो जाना। बट रिमेंबर, टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो क्या होगा? वो पिघल जाएगा। इमेजिनेशन, अपने एक अंदाजे में, इमेजिनेशन में, अपने फ्रिज का रेफ्रिजरेटर, ऊपर जो रेफ्रिजरेटर फ्रीजर सेक्शन है उसका ढक्कन खोलो, उसमें से धुआं उड़ रहा है। दैट फॉग इज बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन. द वाटर सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर। तो वहां पे पानी नहीं है क्योंकि वहां का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, बट सब्लिमेशन तो हो रही है. दैट इज अ डिफरेंस. सो अगेन आपको सॉलिड से गैस पे लेके जाना है, एनर्जी इज नीडेड. सो इट इज गोइंग टू बी बच्चों द पॉजिटिव. याद, सॉलिड टू गैस पे लेके जाना है तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. याद नहीं करना है, वो है तो है, आप उसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे हैं. The heat change when 1 mole of a solid is directly converted to gas at a temperature below its melting point. ये point important है. Do not forget. Is known as enthalpy of sublimation. We remember the Hess law, law of conservation of energy.
whether the process occurs in one step or in multiple of steps. The heat change is always going to remain same हो जाएगा बेटे. So अगर आप solid से liquid पे आए, liquid से gas पे आए, मोटे तौर पे यहां से यहां पे आए 2 स्टेप्स में, या आप यहां से यहां सीधे आए, एनर्जी रेड वाली और 2 स्टेप ग्रीन वाली की सेम होनी चाहिए. You understand? Therefore, I can say the heat of sublimation is equal to heat of fusion plus heat of vaporization. Again, बच्चों, the more is going to be the strength of intermolecular forces, the more is going to be the heats of phase change. हमने आपको heat of fusion, heat of vaporization, heat of sublimation की बात की. आपकी इंटेलिजेंस ने समझा अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो एनर्जी का चेंज कितना हो सकता है. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज टू बी इमेजिन्ड जरूरी होगा. एप्लीकेशंस. Now he says when 1 gram of liquid naphthalene C10 H8, it is 1 gram solid, solidifies. तो शहर लिक्विड से डॉली कैसे जा रहा है? ये solid state. This much heat is evolved. तो गुड़िया डेल्टा H is minus Negative. minus 149. Calculate the heat of fusion. Heat of fusion is for 1 mole. तो 1 ग्राम के लिए, राइट, हमने -149 लिखी. 12 into 10 120 और 128 तो 128 ग्राम. क्यों किया? क्योंकि एक मोल था. 1 mole के लिए required 149 into 128. 149 into 128. एक बंदा सारे मत रिपीट करो. अगर आप रात को 12-1 बजे ये रिकॉर्डिंग देख रहे हुए तो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे, और ये सेशन तो आपके काफी देर काम आएंगे. ठीक है, तो ये ठीक है तृप्ति. अब गुड़िया, Yes. ये था तेरे पास बेटिया 1 मोल के लिए मेल्टिंग के लिए, नहीं सॉलिडिफाइंग के लिए, है ना. अब उसने तेरे से हीट ऑफ फ्यूजन पूछा है, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड पूछा है. Solid to liquid. आपका जो आंसर होगा बेटे वो माइनस ऑफ 149 into 128, दैट इज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. समझा? क्योंकि उसने तुम्हें डाटा दिया था इधर से इधर का, और उसने जो पूछा था तुम्हारे से बेटे वो क्या पूछा था ये समझ पा रहा? दिस वाज आस्क्ड. सो तुम्हारा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव. दैट वाज द Positive. स्किल था बेटे. आंसर मैंने सॉल्व नहीं किया, वो वहां से देख लिया. ही गेव यू डाटा फॉर द पिघलने के लिए, सॉलिडिफिकेशन के लिए, बट ही हैज आस्क्ड फॉर द फ्यूजन प्रोसेस. Fusion. सो दिस थिंग बी टेकन केयर. तो क्या मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ बेटा इसका? Yes, sir. सिर्फ ये करना था. 2.38 दिया है. कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, राइट, ये निकालनी थी. इसका मतलब क्या है? वेपराइज कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड से कहाँ जाएगी? गैस के लिए. Gas. 28 ग्राम हुआ तो 6.04 किलो जूल होगी. अगर ये 2.38 ग्राम हुआ कितना हुआ? That was the question. You will do it as a homework, my dear friends. I have given you the idea. That's again going to be
homework for you people. You will see unitary mathematics पे ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये आप खुद करेंगे, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं. The enthalpy of bond formation, ये पहले किसी को याद है कहां पे किया गया है? Chemical bonding. Chemical bond. वहां पे किया. The bond energy और the bond dissociation therapy. रिवीजन कर लेते हैं सरदार जी क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा बेटे. It is the amount of energy required to break 1 mole of bond present between atoms in gaseous molecule. स्टैंडर्ड है ना, हम जब आपका इम्तिहान लेंगे तो इसी तरीके से लेंगे. तो जब बॉन्ड एनर्जी मानेंगे तो उसको पहले गैस स्टेट में लेके आएगा. इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि अगर आपने वाटर लिक्विड को आपने 2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऐसे ही कर देता हूं, O gas, this is going to be heat of reaction. Notice करना. But if it is going to be water gas converts into H gas plus O gas, this is going to be heat of dissociation of water. और एक और चीज याद रखना, जब आप यहां से यहां आएंगे 2H plus O gas, there will be 2OH bond. क्या होगी? ब्रेकिंग होगी. तो जितनी भी एनर्जी रिलीज्ड होगी डिवाइडेड बाय 2, that will be the average ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी होगी. समझा बेटे मैं क्या कह रहा हूं? और वाइस वर्सा, अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड. बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी इज रिक्वायर्ड. Do you understand what I'm saying? Vice versa, it is the amount of energy released when 1 mole of bonds are formed from isolated atom in the gaseous state. क्या समझाना चाह रहा हूं? दोनों में कोई अंतर नहीं. यहां से अगर तुम यहां की तरफ आओगे तो it is going to be bond dissociation energy and it will be what? Positive. Positive. अगर आप यहां से यहां आओगे, so this is simply the bond energy. You can call it the bond energy and this is going to be बच्चों क्या होगा? Negative होगा. Negative. That is what I'm saying. You should read again. You should read again. वो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ. The enthalpy change in breaking 1 mole of bonds completely is known as gaseous state. Bond dissociation तोड़ने को, bond formation बनने को, दोनों में ये है. Again बच्चों, please read it. यहाँ पे मैं तुम्हें एवरेज अभी कॉन्सेप्ट करवा के आया, तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा. बट मैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा हूं. द एप्लीकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी. द यूज ऑफ बॉन्ड enthalpies to calculate heat change during the reaction. Remember बच्चों, the heat change during the reaction is summation of bond energies of, ध्यान देना सृष्टि, reactants minus summation of bond energy for गुड़िया products. Right? This is the first stage and the only stage where तुम reactant minus product करते हो.
अदरवाइज हमेशा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट होता है, ऑलवेज एल्स वेयर it is product final minus initial, but in terms of bond energy it is going to be the difference of energy between reactants and products. Please take care of this thing. और कहीं पे भी ये नहीं है, इतनी बार बोलने का मतलब यही था. So this is going to be no need to remember, just look for it and you will be able to get it. Some mean multiple bond enthalpy वहां पे भी डिस्कस किया था. डबल बॉन्ड कमजोर होता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. याद नहीं करना है, the foolish will be memorizing. The carbon double bond कार्बन 611 है, ट्रिपल बॉन्ड 37 है, 837. जस्ट टू बी रेड अवर, कोई और काम नहीं करना है. बट हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन is one of the strongest single bond, and nitrogen nitrogen triple bond is the strongest bond we have. Probably this is the reason for आपके और हमारे जिंदा रहने का कुदरत ने कुछ सोच के किया होगा. This is what I discussed just few seconds earlier. Bond energy of reactant and bond energy of products में ये आएगा, otherwise ये नहीं होगा. For example, consider this reaction. हम energies आपको provide करेंगे. It is bond energy of hydrogen and hydrogen, bond energy of bromine and bromine, minus bond energy of HBr. दोबारा देखो, जब आप इस मॉलिक्यूल को, इस प्रोसेस को कर रहे हैं, मैंने sake of simplicity के लिए बच्चों physical state नहीं लिखी. That gives you HBr 2 moles. तो आपको एक ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. एनर्जी हम इसकी प्रोवाइड करेंगे 435. एक ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा 192, माइनस 2 बॉन्ड HBr के बनने वाले हैं, ये एनर्जी दे रखी है 368. 2 into 368, that will be heat of this reaction. You understand? It is going to be reactant minus product multiplied by stoichiometry. Let's do this question together. सुनो, मैं करता हूं, आप देखिए. The average bond enthalpy of carbon hydrogen, carbon chlorine are this. Calculate the delta R. Delta R is going to be bond energy of reactant minus bond energy of product. Product में तो atomic form में दिया है. So how will you do it? Bond energy of reactant 2 carbon hydrogen plus 2 carbon chlorine minus 0. अरे ये तो गैसियस फॉर्म में दिया है, H और H में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है. ये गैसियस एटम है, ये गैसियस एटम है, so they have no energy. तो 2 414 plus 2 330 828 plus 663. I may be wrong, keep on checking it. 488 kilojoule. Do you understand? जीरो क्यों क्या बेटिया? जीरो क्यों लिखा है? जीरो इसलिए लिखा पुत्र क्योंकि ये जो तेरा प्रोडक्ट बन रहा है इसमें बेटे कोई बॉन्ड ही नहीं है. ओके सर, यस सर, कंफर्म हो गया? राइट यस. सन. और इस 2 बॉन्ड तोड़ने, इधर एटम रखे हैं ना, तो एटम के बीच में तो कोई बॉन्ड है ही नहीं है. दोबारा देख 56. अभी आता हूं. ये इसमें इधर बॉन्ड था,
हाँ जी राइट, सर। और यस। इधर नहीं है बेटिया, ये लिखा है बच्चे। चल और करते हैं, चाहे तुम करवाओ मेरे साथ ये क्वेश्चन, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गुड़िया, और रिपीट किया कर। चल बेटे, यस, हीट ऑफ रिएक्शन गुड़िया, मेरी मदद करना, कहीं पे गलती हो तो संभाल लेना, तो बाकी लोग देखते हैं। 2 into 2 नहीं 4 कार्बन हाइड्रोजन, समझ आया? यस सर। 1 2 3 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, प्लस 1 3। कार्बन कार्बन, हाँ जी सर। एक वैल्यू बाद में डाल देते हैं, ठीक है, प्लस यस सर। 3 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब ये समझ आ गया 3 कहां से आया? यस सर। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, माइनस 1 2 इंटू 2 4, 4। यस सर। समझ आएगा 4 किस? यस सर। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ये कार्बन डाइऑक्साइड था, कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2, प्लस 4 OH, यस सर। 1 2, इधर 2 लिखा हुआ है, यस सर। तो क्या मैं इसको होमवर्क दे दूं बेटिया? यस सर। वैल्यू पुट करना है, बस एक चीज याद रखना, बॉन्ड एनर्जी की टर्म में इट इज रिएक्टेंट And minus energy of माइनस प्रोडक्ट। अदरवाइज हमेशा इट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सर एक बार दोबारा बता दो, वो 4 क्यों आया था वहाँ पे? कहाँ पे पुत्र? यहाँ पे। सर यहाँ पे। यस ये देख माता, तो एक बॉन्ड तोड़ा, ये सेकंड सर। बॉन्ड तोड़ा, बट आपके पास कितने मोल्स थे? 2, तो 2 2। कितना हो गया? 4। ओके सर। अब तुम बताओ, सपोज कहीं पे 3 वाटर हुआ, बन रहा हुआ, तो आप कितने OH बॉन्ड तोड़ेंगे या बनाएंगे? सर 6। यस, समझा? यस सर। यस सर की बच्ची, ये क्वेश्चन करवा मेरे साथ, और सुन, इसको सॉल्व जरूर किया करो बाद में खुद। मुद्दा तुम्हारे से क्वेश्चन करवाने का नहीं है, मुद्दा यहाँ पे डालने का है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, वैल्यूज तुम पुट करोगे गुड़िया, मुझे तो सिर्फ तुम समझा दोगे, ठीक है? यस सर। मैं टीचर हूं तो लंबा रास्ता ले रहा हूं, आपका एग्जामिनर आपका रिश्तेदार नहीं होगा, तो वो आपको इस तरीके से नहीं लिखेगा, आपको खुद समझना होगा बेटिया। ठीक, ये तुम्हारे से इसलिए करवाया क्योंकि तुम्हें से पूछना था। तो गुड़िया, द हीट ऑफ रिएक्शन बता, जो तुम बोलोगे मैं वही लिखूंगा, सिर्फ पूरी बोलेगी। सर 8 into कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड, 1 मिनट, आपने ठीक बोला। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक बोला। ठीक, सर रिवीजन कर। +2 CC बॉन्ड। शाबाश शेर खान, तो बिल्कुल ठीक बोला है, तुम्हें पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वेरी गुड, +5 डबल O बॉन्ड। वेरी गुड, माइनस, समझ आ गया ना? यस सर। बोल बेटे। सर 6 CO बॉन्ड शाबाश गुड़िया, +8 OH बॉन्ड। बाकी काम कर लेगा।
Yes, sir. वैल्यूज तुम पुट कर लोगे तो ये बहना, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। दिस इज, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वेरी चैलेंजिंग। मैं अभी समझाऊंगा बट आप इसको खुद करेंगे। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है एंड इट्स रियली अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो। Calculate the enthalpy change for the process CCl4 gas converting into carbon gas plus 4 chlorine gas, and calculate the bond enthalpy of carbon chlorine bond in CCl4. दो चीजें पूछी हैं। फर्स्ट, heat of reaction, and second, the average carbon chlorine bond, right? ये इसने पूछी है और उसने आपको चार चीजें दी हुई हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन, कार्बन क्लोरीन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू CCl4 गैस। डेल्टा H कितना है? 30.5 kilojoules. ये रिपीट क्यों कर रहा है? एक बच्चा करे, ठीक बच्चों? तो एक बच्चा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा भैया। सेकंड, तृप्ति चलो तुम करो। हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर CCl4, CCl4 तृप्ति लिक्विड होता है। मुझे कैसे पता? मैंने पढ़ा था। तुम्हें कैसे पता? मैंने नॉलेज प्रोपगेट किया। तो इसके लिए कार्बन गैस, ओ सॉरी कार्बन सॉलिड, स्टैंडर्ड स्टेट है ना, 2 क्लोरीन गैस, दैट इज द हीट माइनस 135.5 किलोजूल दी हुई। तीसरा, हीट ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट इज एटमाइजेशन? एटॉमिक फॉर्म में लेके आना। कार्बन सॉलिड, पत्थर, कोयला, ये दीवार पे हमारा सॉलिड है, एटम नहीं है। तो अगर हमने इसको कार्बन गैस की फॉर्म में लेके आया तो डेल्टा H इज 715 किलोजूल। और फोर्थ, द कार्बन सॉरी हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्लोरीन गैस को एटम्स की फॉर्म में लेके आओ, that is going to be 242 kilojoule per mole. Do you understand इसने डाटा क्या दिया है? पहले सबसे पहले समझो उसने डाटा क्या दिया है। You will read everything else. ये मैंने आपके लिए साफ करके रखा है क्योंकि आप इसको बाद में करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन को समझो, उसने आपको डाटा क्या दिया था। That is what he has provided. Now, I said this is a challenging question. तो उसने आपसे इस रिएक्शन के लिए, राइट, जहां पे उसने गैस बनाया है, उसने आपसे इसके लिए इक्वेशन पूछी है। प्लीज बी फोकस्ड। आई सेड इस क्वेश्चन में बड़े बड़े लोग काम नहीं कर सकते हैं। आप रट के चले जाओ, हो जाएगा। आप समझ के जाओ, आप दसों क्वेश्चन कर लेंगे। तो तृप्ति समझा गुड़िया, उसने तेरे से इसकी हीट ऑफ रिएक्शन पूछी थी और उसने आपको एक ये दिया था, एक ये दिया था, ये और ये दिया था। हालांकि ये हेसलॉ बेस्ड क्वेश्चन है, पर अभी मेरी बात मान लेना, थोड़े समय में करवाऊंगा। द thermochemical equations can be treated as algebraic equations. They can be added, they can be subtracted like the other equations. They can be added, they can be subtracted. एक सेकेंड बेटे, कुछ करवाना है तो मेरे साथ देखो। ये देखो,
मेरी प्रैक्टिस है तो तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा, इसका कोई वे आउट नहीं है। देख तृप्ति मेरे साथ रहे। Yes. क्वेश्चन 3, स्लो हो जाना। कार्बन सॉलिड, को ऐड करना है ना ऐसे गुड़िया, पहले सबके रिएक्टेंट देख फिर प्रोडक्ट देखेंगे। मैं टीचर हूं, अलग अलग पेन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लस इक्वेशन 4 into 2, 4 into 2, this is 2 chlorine gas, right early? Now watch it, एक सेकेंड बेटे, ये पेन चेंज किया है। माइनस इक्वेशन 1 माइनस CCl4 लिक्विड, माइनस इक्वेशन 2 माइनस कार्बन सॉलिड माइनस 2Cl2। तो पूरी 1 मिनट तृप्ति को बोलने नहीं डाली, कोई समझा रहा हूँ बढ़िया है ना। तो ये तृप्ति अब प्रोडक्ट में आ जा गुड़िया। इक्वेशन 3 में क्या लिखा था? कार्बन गैस। सर गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। क्या गड़बड़ कर दी पुत्र? सर इक्वेशन 2 माइनस करनी है हमने, वहां -2Cl2 नहीं आएगा। बच्चे एक सेकंड संभाल ला, ये बस ये सरदार साहब ध्यान से। तो तृप्ति तुम क्या कर रहे थे? एक मिनट सरदार चेक करते हैं बेटे। इक्वेशन 1 में क्या था? माइनस इक्वेशन 1 CCl4। सरदार साहब क्या गड़बड़ कर दी? हाँ सरदार साहब, इक्वेशन 3 कार्बन सॉलिड प्लस 4 टाइम्स इक्वेशन 2 माइनस सरदार जी इक्वेशन 1 CCl4 लिक्विड माइनस दिस सिंह। क्या गड़बड़ हुई बेटे? नहीं सब प्राइम मिस्टेक कर दिया। चल कोई बात नहीं। तो तृप्ति ठीक थी, तृप्ति चल आ गया। और तृप्ति ये बात देखो, इस इक्वेशन में नॉलेज से गड़बड़ नहीं होगी, प्लस माइनस से गड़बड़ होगी। कोई बात नहीं बेटे, हो जाती है। चल बलविंदर तुम कंटिन्यू करो, वापस इक्वेशन 3 पे आ जाओ। यस सर। अब ध्यान से बेटे, ये प्लस माइनस ही ध्यान वाला है। कार्बन सॉलिड प्लस इक्वेशन 4 सर कार्बन गैस है। कार्बन गैस। हाँ ये चीजें ध्यान कर लेना बेटे, ये बहुत फर्क डालेंगी। यस बेटा, इक्वेशन 4 into 2 प्लस 4 क्लोरीन गैस माइनस, कलर चेंज कर लेते हैं ना, उससे कंट्रास्ट चेक करना आसान रहेगा, माइनस CCl4 गैस माइनस CCl4 लिक्विड। एक सेकेंड, अब काटो जो कटता है। 2 क्लोरीन गैस, 2 क्लोरीन गैस CCl4 लिक्विड, और देखो कोई चीज कट रही हो। तो CCl4 लिक्विड कट रहा है। ये कट गया, ये माइनस है। सर कार्बन सॉलिड कट रहा है। थैंक यू बेटे। और चीज देखो, ये अब चेक करना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा खत्म हो गया, ये माइनस था। सिंह साहब इसको इधर ले आओ। यस सर। क्या मिला बेटे? जो इक्वेशन चाहिए थी वो आ गई, राइट? अब यस तो जो आपने जहाँ पे इक्वेशन 4 into 2 किया है वो एक बार इलेबोरेट कर दो, वो वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? क्योंकि बेटिया मेरी जो थोड़ी आपने प्रैक्टिस है ना, मुझे इनको प्लस माइनस करके मैं एक काम मन में कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया नहीं। वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था, ये क्वेश्चन हेस लॉ का है,
हम इक्वेशंस को ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो। मुझे इन चारों इक्वेशन से मेहनत करके ये वाली इक्वेशन लेके आनी थी, तो वो मुझे आता था जो मैंने तुम्हें सिखाया है। किसी भी तरीके से मुझे ये इक्वेशन आनी थी। So that is why I have done it, and that is why son I wrote this. ठीक है जी, ये तेरे को तुम्हारे लिए। अब जिस हिसाब से आपने इक्वेशंस को प्लस माइनस किया, अब उसी हिसाब से आपकी हीट एड अप होगी। इक्वेशन 3 में कितना था? 715 प्लस इक्वेशन 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 242 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1 30.5, that is, एक सेकेंड रुको, and then it says minus equation 2 minus of minus 135.5, that will be your what answer? इसकी heat of reaction आई। नई चीज सीख रही है, सीख। हमने बाय हुक और क्रुक इन इक्वेशंस को ऐसे एड अप किया कि मुझे ये इक्वेशन मिल गई। दैट इज व्हाट आई डिड। नाउ आई गॉट। हाँ जी सर, एक बार इक्वेशन 4 इंटू 2 वाला बता दो। वही तो बोल रही, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी। आप लोग जैसे मर्जी करो, ये हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गुड़िया, ये किया। इसको करने के बाद मुझे ये आया, वो मैं दिमाग में सोच पाया। तुम्हें अभी सोचने में देर लगेगी। पहले दिन माँ के साथ खड़ी हुई बढ़िया सा चिकन या बढ़िया सा राजमा बनाना नहीं सीख जाएगी। थोड़े दिन देखना पड़ेगा, इसके जैसे 85 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो बेटे आपसे निकलेगा। राइट? ये नहीं कि पका पकाया था, इसके पीछे मैंने सोचा है तो मैंने ऐसा कर लिया। तुम्हें एकदम नहीं होगा। तो आपको जब ये इक्वेशन मिल गई, मैंने ये इक्वेशन इन नीचे वाली 4 इक्वेशन से कुक की। आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं किस प्रकार से ये इक्वेशन। अभी के लिए मैंने ये पहले ही बोल दिया था, ये इक्वेशन थोड़ा पहले आ गई है, ये हेस्लॉक के बाद आएगी। बट एनीवे अभी मुझे ऐसे ही चलना होगा डॉली। तो ऐसा करने से तुम्हें ये 4 बॉन्ड एनर्जी मिली है। देखो ना, CCl4 को तोड़ा है, तो अगर आपने CCl4 को तोड़ा है तो आपको 4 एनर्जीज मिल गई हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुमने क्या कर मारा है, आपने ये एक सेकंड, ये आपने 4 बॉन्ड तोड़े हैं। तो आपने इसको बनाया है 4 क्लोरीन गैस। तो we have broken the 4 bond. So average carbon chlorine bond will be heat of reaction by 4. That is the second thing he has asked. I told you this is not for ordinary one. समझो, करो, और 3-4 बार करने से होगा। रही बात मैंने ये प्लस माइनस कैसे किया, दिस विल टेक टाइम। टेक टाइम मतलब ये नहीं कि कोई 10 क्लासेस लगेंगी, 1-2 क्लासेस में और आगे आपको हेस्लॉ में मिलेगा। पेज नंबर 68, 1 मिनट। ये कुछ वैसा ही है जो कॉन्सेप्ट मैंने ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, कुछ क्या ऐसा ही कॉन्सेप्ट है यूजिंग हेस्लॉ। मैंने यहाँ पे हेस्लॉ यूज कर दिया है। दैट्स इट। अभी के लिए इतना बेटे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है।
तो वो प्लस माइनस कैसे किया, दैट इज फॉर द इंटेलिजेंट वन, दैट इज फॉर द हिम्मती वालों के लिए. सो सी टू दैट एंड प्रैक्टिस इट मोर. बट स्टिल अभी इतना ही आंसर मैंने दिया है. चलिए, वो वही वाला टॉपिक जो तुम्हें करवाया, जो मैंने कहा था ना ये कैसे आया, वही वाला. द थर्मोकेमिकल इक्वेशन can be treated as algebraic equation which can be added, subtracted, multiplied or divided. देख शहर एक लंबा रास्ता ले बढ़िया. तुझे याद है वाटर सॉलिड को किसमें कन्वर्ट किया, वाटर लिक्विड. वाटर लिक्विड को बिटिया तूने कैसे कन्वर्ट, वाटर गैस. और तुझे याद है मैंने यहाँ से यहाँ भी कह दिया था, तो इसको मैंने बोला था हीट ऑफ फ्यूजन, इसको मैंने बोला था हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको मैंने बोला था सब्लिमेशन. तो गुड़िया आपने कहा जो पिछले वाला उसी को बढ़ा रहा हूँ, बट बेटे यहाँ पे तेरी इंटेलिजेंस काम आएगी, तेरी हिम्मत काम आएगी. इंटेलिजेंस तो नहीं कहूंगा, हिम्मत, घुसने की हिम्मत. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डॉली? यस सर. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर. अब देख, जुगत लगा, मुझे इन तीनों को, दोनों को ट्विस्ट करके ये बनाना था. तो ये बनाना था. मुझे किस इक्वेशन में जो चाहिए वो दिख रहा है. वाटर सॉलिड किस इक्वेशन में दिख रहा है? फर्स्ट वाले में. लेफ्ट में चाहिए. यस सर. लेफ्ट में दिख रहा है. यस Therefore, सर. you will write add equation 1. ओके सर. That is equation 1. अब आपको वाटर गैस कौन सी इक्वेशन में दिख रहा है? राइट में. और आपको चाहिए कहाँ पे? राइट. तो इसका मतलब प्लस इक्वेशन 2 कर दे. यस सर. ओके सर. तो वाटर सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म्स वाटर लिक्विड प्लस क्या रह गया, वाटर गैस. लिक्विड डाला, लिक्विड निकाल लिया, कैंसिल हो गया. यस तो सर. क्या हो गया तेरे पास? यस सर. समझ आ गया. तो जैसे इक्वेशन ऐड किया वैसे हीट ऐड होगी. हीट ऑफ इक्वेशन 3 इज इक्वल टू हीट ऑफ इक्वेशन 1 प्लस हीट ऑफ इक्वेशन 2. बढ़िया. अभी ये सिंपल था, बट मैंने कहा कि मैंने आगे का सोचा है. आगे का सोचा मतलब तेरे को अभी स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ और सिखाऊंगा. समझ गया? यस सर. तो अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं. आम आदमी रट लेगा, तुम्हारे जैसा आदमी इंतजार करेगा, कोई बात नहीं, आने दे, सीखूंगा. ठीक है शेरखान? यस. चिंता मत कर, मैं ही सिखाऊंगा तेरे को. और थोड़ी देर में, ये नहीं कि 2 महीने में, मेरा ख्याल घंटे 1.5 घंटे में तू मास्टर बन जाएगा. घंटे 1.5 घंटा मेरी इंस्ट्रक्शन. तो ये कॉन्सेप्ट समझा गुड़िया? यस सर. चल अब मिल के करते हैं. ठीक, वही काम जो तूने पूछा था ना. और सुन, वो कहते हैं ना शेर बनना, 473 पे आना, बट बार बार यहाँ पे फिरना. समझा? इसको धोना है. सिखा रहा हूँ बेटिया. तो लेट्स स्टार्ट गुड़िया. जो तुमने सीखा इसी में से आंसर निकलेगा जो तुमने पूछा. तुम्हारी आंखों के आगे एक क्वेश्चन है. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इस जनाब ने ये इक्वेशन आपको दी नहीं है. तो अब तुम मुझे बताओ, मिथेनॉल लिक्विड को बनाना है गुड़िया, कैसे बनाएगा? नो, कार्बन सॉलिड.
है ना? ओ कहाँ गई? Am I audible? Yes. Yes, sir. तृप्ति तुम्हारा, तृप्ति 2 हाइड्रोजन गैस प्लस आधी O2 गैस, O2 gas. समझा बेटिया? Yes, sir. एक सेकेंड, this equation is needed. अब तृप्ति, मैं तो एक स्टेप में कर सकता हूँ, बट आई एम अ टीचर, मैं इसको लंबे रास्ते से करूंगा, तुम्हारे से निकलवाऊंगा, ठीक है गुड़िया? तुम्हें तृप्ति और कोई नहीं बोलेगा, बाकी सब सुनेंगे। मुझे ये टारगेट इक्वेशन है तृप्ति, और मुझे इन तीनों इक्वेशन में से ये इक्वेशन बनानी है, समझा? दिस इज Yes, sir. एजेंडा। हम लंबे रास्ते से जाएंगे, वहां पे मैंने एक बार में कर दिया, यहाँ पे आई एम अ ट्रेनर, मैं एक स्टेप में जाऊंगा। तुझे कार्बन ग्रेफाइट डॉली कौन सी इक्वेशन में दिख रहा है? Sir, second equation में. कहाँ दिख रहा है? लेफ्ट पे। कहाँ चाहिए? लेफ्ट में। तो इसका मतलब शेर खान, तेरे को इक्वेशन 2 के आगे पॉजिटिव रखना होगा। अगर उसकी राइट लेफ्ट करता, जैसे मैथमेटिक्स में करता था, प्लस माइनस कर देता है। अब आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटे? Sir, 4. जल्दी सोच के तो बोल। H2 2 चाहिए, 4 कहाँ से चाहिए? टू हाइड्रोजन नहीं चाहिए, 4 हाइड्रोजन कहाँ से चाहिए? अगर आप इतनी देर लगाओगे तो पूरी आप बोलिए, इतनी देर में इंतजार नहीं कर सकता हूँ, छोड़ो। हाँ पूरी, आपका माइक ठीक है। Yes, sir. तो 2 हाइड्रोजन चाहिए ना? Yes, sir. तो गुड़िया आपको इक्वेशन 3 3 into 2. 2 करना पड़ेगा, राइट गुड़िया? इक्वेशन Yes, sir. 3 into 2 करना पड़ेगा। अब देख, अभी हम लंबा रास्ता ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपको सिखाना है। अब गुड़िया मेरी मदद कर, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस प्लस 2H2 गैस हो गया, प्लस Yes, sir. O2 गैस आ गया, Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 Plus वाटर। 2H2 liquid. जिसको सुधारना है उसको सुधार दे। कार्बन गैस प्लस 2O2 गैस 2O2 gas. प्लस, Plus 2H2. और देख ये जो बलविंदर ने किया था ना, वो ध्यान करना, एक एक स्टेप का ध्यान करना है, क्योंकि अगर कोई भी कॉपी में गलती हुई तो हमारा क्वेश्चन फंस जाएगा। डॉली इसको इक्वेशन क्या बोल देता हूँ? 4 बोल देता हूँ। आ गया? Yes, sir. जैसे तुमने इसको इक्वेशन को किया, वैसे इसकी हीट भी होगी। इक्वेशन 2 कितना था? -393 393. प्लस इक्वेशन 3 into 2 प्लस 2 into 2 into -286. कैलकुलेटर पे कर ले बेटे ये। -965. -965 किलो जूल।
बलविंदर इतनी देर में ये चेक कर लो सहर, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो आगे गड़बड़ हो जाएगी। तुम मेरे साथ रहो बेटे। सही है सर। गुड मेरे बच्चे। अब ये इक्वेशन आ गई, देख टारगेट तुम्हारा इस इक्वेशन का, इसको मत हिल। अब इस इक्वेशन में मुझे मिथेनॉल लिक्विड चाहिए बिटिया, है ना? किस तरफ? राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे। और पहली इक्वेशन में मिथेनॉल लिक्विड कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट पे। तो आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, तो साइन उल्टे मार, माइनस इक्वेशन 1, ठीक है ना? अब यस। स्लो चल, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई हमने गड़बड़ की तो हम आंसर के बहुत पास होते हुए गड़बड़ कर जाएंगे। कार्बन ग्रेफाइट 2O2 गैस बहना प्लस 2H2 गैस, है ना, माइनस CH3 माइनस डेड O2 गैस, ठीक है ना? यस सर। चेक करते रहना बहना, कभी गलती ना हो जाए मेरे से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 वाटर लिक्विड माइनस कार्बन डाइऑक्साइड गैस माइनस 2 वाटर। अब गुड़िया काटने लगा हूं, 2 वाटर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड कट गया। यस सर। 2 ऑक्सीजन और डेड ऑक्सीजन कितना रह गया? हाफ ऑक्सीजन 0.5। अब देख वही तो इक्वेशन आ गई, कार्बन ग्रेफाइट यस सर प्लस 2H2 गैस H2 माइनस O2 गैस माइनस मिथेनॉल शिफ्ट करके इधर चला गया। यस सर। ठीक है, अब मदद कर। तो इसके लिए जो हीट नेट आएगी दैट इज गोइंग टू बी, क्या किया था? इक्वेशन 4 -1 माइनस 965 माइनस 726। आंसर दे गुड़िया। 241। -239। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। दैट इज आंसर आ गया बच्चों। अब देखो मैंने कहा ना, मैं इक्वेशन देख पा रहा हूं, तुम्हें भी इक्वेशन देखने में थोड़ी समय लगेगा। मैं अभी आपके लिए लंबे रास्ते से गया, जल्दी तुमने ये शहर टच करना है माइनस इक्वेशन 1। यहां पे मैंने लंबे रास्ते से किया, ये मैंने आपके लिए किया, अदरवाइज आपको बड़ी जल्दी ये टच करना है बेटे, आप समझ आएंगे। ये मैंने एक ही स्टेप में कर देता आप सीधा यहां पे पहुंच जाते सीधा, बट दिस विल टेक टाइम। दैट इज शहर, मैंने यहां पे गुड़िया ये किया था समझा? तो this will take time for those who will be practicing. Now you are supposed to repeat it, because unless and until you repeat it 10 times you will not be able to understand. सरदार तुम आगे आओ, 10वां क्वेश्चन करते हैं मिलके दोनों हम, ठीक है? यस सर। तो बस एक चीज ध्यान रखना बेटे, जब अगले स्टेप पे जाएगा पिछला स्टेप चेक कर लेगा, ओके? तो स्लो हो जा बस इसमें, जैसे तुम चलते हो ना स्लो हो जा, हर स्टेप को चेक करते हो, बस ऐसा ही मुझे चाहिए। गलती मेरी, कोशिश तुम्हारी, क्योंकि अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। सिंह साहब, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। कैलकुलेट व्हाट बेटे? एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 mole of water at 10 degree to ice at -10 degree Celsius. सिंह, मैंने कहा जल्दी नहीं है मुझे, तुम्हें भी नहीं है,
सिंग वाटर, आपके पास क्या है बेटा फॉर्म? लिक्विड है। कितना पे है दोस्त? 10 डिग्री सेल्सियस पे। इट इज चैलेंजिंग क्वेश्चन और आपकी एनसीईआरटी का है। वाटर लिक्विड को सरदार आप बेटे लेके जाएंगे पहले वाटर लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है जी। फिर आप वाटर लिक्विड को, तुम म्यूट कर जाओ, म्यूट कर दो। हाँ आप म्यूट कर दो। मुस्कान जैन तुम आ जाओ। वाटर सॉलिड में कन्वर्ट करेगा 0 डिग्री सेल्सियस में, और जैन तुम वाटर सॉलिड को लेके आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। पहले तो बच्चे तुम ये पहला स्टेप समझो। उसने इसको डेल्टा H1 बोल देते हैं, इसको डेल्टा H2 बोल देते हैं, इसको डेल्टा H3 बोल देते हैं। उसने तुम्हारे से बिटिया ये सारा पूछा है। क्या तुम्हें ये स्टेप समझ आया? यस सर। राइट, लेट्स मूव अहेड। हमने आपको जो जो कॉन्सेप्ट सिखाए वो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तुझे याद है एक स्टेज पे तुझे कराया था Q is equal to MC थीटा। MC थीटा, यस सर। गुड़िया तेरा मास कितना है? 1 मोल। क्यों? क्योंकि ये भी दे रखी है तो मैंने 1 मोल में मैंने वो चेक कर लिया था, ठीक है। यस सर। तो 1 मोल, थोड़ी जगह नहीं है नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। कोई गलती नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ वीडियो। 1 मोल स्पेसिफिक हीट लिक्विड टू लिक्विड कितनी दी है गुड़िया उसने तेरे को? 75.3 जूल। राइट, जूल पर मोल पर केल्विन। मोल का हैप्पी बर्थडे हो गया। यस सर। थीटा कितना है वह ना? सो 10। वेरी गुड। केल्विन केल्विन कट गया। यस सर। अब देख, तूने अगर टेम्परेचर बढ़ाना था तो हीट तुम्हें देनी पड़नी थी। यस सर। यहाँ पे तो टेम्परेचर कम हुआ है ना गुड़िया। यस सर, हीट मिलेगी। हीट सिस्टम लूज करेगा, तो अगर हीट सिस्टम लूज करेगा तो गुड़िया तेरे पास साइन क्या आएगा? नेगेटिव। ये समझ आया? यस सर, हीट रिलीज पे नेगेटिव रहता है। तो 0.753 किलो जूल समझ आ गया? यस सर, किलो। अब देख हर स्टेप का कोई मतलब है, इस माइनस का मतलब है यहाँ पे मैंने इमेजिन लिख दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हें यहाँ पे स्ट्रेस करना होगा, ठीक है जी। चल रहे आगे। गुड। अब इसको ध्यान से देख, ये तो फेज चेंज हुआ है। यस सर। क्यू कह दे डेल्टा एच कह दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज डेल्टा एच is minus of heat of liquid से solid पे गया तो फ्यूजन होगा। यस सर, फ्यूजन। माइनस समझ आ गया क्यों? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड पे जाएगा तो एनर्जी चाहिए, लिक्विड से सॉलिड पे जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यस सर। ये माइनस तेरे को समझ आ गया होगा। 6.03 किलो जूल दे रखी थी। यस सर। राइट, दोबारा लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, इमेजिन मतलब सोच। अब इधर आ जा, इधर सॉलिड टू सॉलिड पे गया तो Q इज इक्वल टू
कौन सी होगी? MC थीटा। बट टेम्परेचर घटा है, अगर बढ़ेगा तो तुम्हें देनी पड़ेगी, तो आपका साइन क्या होगा बहना यहाँ पे? सर पॉजिटिव। माइनस। यस सर, कम हुआ है। समझा कि नहीं? नेगेटिव। यस सर, नेगेटिव। तो माइनस m इज 1 मोल। 1 मोल। नहीं लिख रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट सॉलिड की अलग होती है 36. 36.8। टेम्परेचर कितना? 10। माइनस ये आपका जो नेट आएगा, राइट, आपका जो नेट आएगा वो क्या बनेगा? इन सबको ऐड कर। एक मिनट गुड़िया, मजा आ रहा है? क्वेश्चन चैलेंजिंग होने चाहिए। ओ सॉरी, इस कितना आंसर है गुड़िया? सर -7.15। और सुनो, ये दो चैप्टर थर्मो और इक्विलिब्रियम, एनसीईआरटी बहुत बढ़िया चैप्टर है। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गिवन। पहले स्टेप में हमने समझा बलविंदर उसने क्या कहा था, राइट? अब ये एकदम तुम्हें 10th के लेवल से नहीं आएगा, ये तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है। उसके बाद तुमने ये देखा, समझा, फिर तुमने एडअप किया, तुमने प्लस माइनस का ध्यान किया, तो तुम यहाँ पे जाके पहुंचे। दैट इज द क्वेश्चन। दिस इज अगेन योर एनसीईआरटी प्रॉब्लम, सो यू शुड डू दैट। ये जैन हमने यहाँ पे आपके लिए किया है बेटिया, आप देख लीजिएगा, वही चीज है। तो वही चीज है, डेल्टा H1 पहले निकाला, डेल्टा H2 माइनस साइन तुम्हें समझाया, डेल्टा H3 बेटिया, और फाइनल आंसर ये तुमने निकाल दिया। कर लेगा बच्चों? यस सर। नाउ वही है, क्वेश्चन देखने का अंदाज बदल गया। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो ये आपको जो नजर आ रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट है। सनी तुम देख रहे हो मेरे साथ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये इक्वेशन चाहिए तो आपको कुक करनी होगी। कार्बन ग्रेफाइट 2H2 गैस इज नीडेड। इसके लिए उसने हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है, एंड स्मार्ट चैप में तुम्हें इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, यानी कि जब मीथेन को जलाएगा तो क्या मिलेगा गुड़िया? डाइऑक्साइड। H2O। इसको बैलेंस कर, क्योंकि उसके बगैर बात नहीं बनेगी। 2 और 2 4, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन 1। इसके लिए -890.3 है। दूसरा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन, Carbon plus oxygen O2 from CO2 गैस, ये गुड़िया उसने तेरे को 393.5 3.5 एंड डाई हाइड्रोजन पुत्र, डाई हाइड्रोजन H2 गैस, SO2 बोल forms half 2H2O। ना, एक रखना ना, क्योंकि अगर तूने इसको एक नहीं रखा तो वो इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी।
enthalpy of combustion of methane, graphite, hydrogen, they Yes, should sir. be kept as bहना 1 mole. Okay, sir. Yes, sir. माइनस वाली 285.8 किलोजूल है। अब देख तुम्हारा काम क्या है, तुमने किसी तरीके से इन तीन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है टू अराइव एट दिस इक्वेशन, समझा? एंड दैट विल Yes. बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। सहज, मुझे पता है तुमने क्वेश्चन पूछा था बेटा, तो तुम्हारे से करवा रहा हूं, ठीक है? तो इसको पॉजिटिवली लेना। वो जो एक इक्वेशन तुमने पूछा था ना, उससे मुझे तुम्हें बताने में फायदा हो रहा है। अब गुड़िया मेरी मदद कर, तुझे एक कार्बन चाहिए, Yes, sir. वो कौन सी इक्वेशन में दिया हुआ है? सेकंड में लेफ्ट साइड पे तो उसको प्लस करेगा कि माइनस करेगा? प्लस। वेरी गुड, प्लस इक्वेशन 2। अब बहना तेरे को हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2 कौन सी इक्वेशन में मिल रहा है गुड़िया तेरे को? थर्ड में कितने मोल चाहिए? 2 मोल। अच्छा, कितने मोल दिए हुए? 1 मोल। तो कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट पे राइट पे? लेफ्ट। सब लोग रिकॉर्डिंग में ये वर्ड सुनेंगे जो मैं इससे पूछ रहा हूँ। तो लेफ्ट पे चाहिए, लेफ्ट पे दिए हुए हैं तो प्लस का प्लस ही रहेगा। अगर यस सर। लेफ्ट पे दिए हुए हैं और राइट पे चाहिए तो माइनस आ जाता। ठीक है सर। तो गुड़िया तेरे को प्लस साइन समझ आ गया, क्योंकि साइड यस, चेंज करनी। साइड कितने नहीं चाहिए। चाहिए? 2। तो 2 इंटू इक्वेशन 3, समझ आया? यस सर। तो सर अब अगर थर्ड इक्वेशन में हम हाइड्रोजन 2 ले लेते और मतलब वाटर भी वहां पे 2 कर देते फिर? जो इक्वेशन आएगी उसकी अलग बात करूंगा, क्योंकि जो तुम हाइपोथेकेट कर रहे हो उसमें बहुत चीजें अलग होंगी, तो वो वी विल बी बीटिंग अराउंड द बुश। मेरे घर में 10 फुट का हरे रंग का चोर आएगा, मैं उसको बांस बनाऊंगा जो कि मैं हिमालय पर्वत के नीचे से लेके आऊंगा। दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन फॉर साइंस, राइट? कल को यस। एक बीमारी आएगी, हम उसको कैसे टैकल करेंगे? भाई बीमारी आई, उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, उसका प्रोटीन कौन सा होगा, उसकी हम वैक्सीनेशन उस वक्त देखेंगे बेटिया। अभी इस क्वेश्चन का ध्यान कर, दैट इज नॉट साइंस, दैट इज हाइपोथिकेशन, दैट इज स्काई-फाई फिक्शन। तो अब तुझे मीथेन कहाँ पे चाहिए इसका ध्यान कर, राइट। और कहाँ पे दिया गया है। लेफ्ट पे तो माइनस हो जाएगा, माइनस फर्स्ट इक्वेशन। समझा तेरे को मैंने क्या सिखाया अभी, वो उस चीज को ध्यान से सुनना। माइनस यस। इक्वेशन 1 आपकी आंसर, यानी कि ये इक्वेशन आ, दैट इज इट। पेज नंबर यस। 83। दोबारा बता रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस थी। अब मेरी प्रैक्टिस के पीछे ये नहीं था ना, मैंने बैठ के मैंने हजारों क्वेश्चन किए होंगे डॉली। दैट इज माय सन, तुम यहाँ पे पहुंचे, समझा? यस सर। देख तेरे को जिंदगी का एक सेशन, एक लेक्चर दे रहा हूँ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। शहर में बहुत सारे डॉक्टर होंगे, देश में बहुत सारे डॉक्टर होंगे, क्या वो डॉक्टर ज्यादा इंटेलिजेंट होगा जिसके पीछे तुक्का लगेगा, या वो डॉक्टर ज्यादा इंटेलिजेंट होगा जिसने ज्यादा पेशेंट्स देखे होंगे, जिसने ज्यादा अच्छे टीचर से पढ़ा होगा? आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द पाथ which you have to treat, you have to achieve, you understand? अब बिटिया ये जो तुमने मुझे बोला, इसके पीछे प्रैक्टिस है। यही था ना, तुमने मुझे यही बोला था ना? यस सर। बिल्कुल यही तो बोला तुमने मुझे। ये देखो आंसर आ जाएगा बेटा। यस सर। अब वही इक्वेशन दोबारा आ गई जो पीछे तुमने कहा था कि कैसे किया। ये इसकी राइट प्लेस थी गुड़िया, मैं बता रहा हूं तुम समझ जाओगे, बट बेटे इसके पीछे काम चाहिए। सो तुम्हारे जैसा बच्चा मुझे चाहिए सींग पकड़ ले, करना है ऐसी की तैसी, कैसे नहीं करना है,
तो समझेगा बेटिया। नाउ these equations will go as a homework. अगर सीखना चाहते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। हीट ऑफ रिएक्शन इसका चाहिए, दिस इज द नीडेड इक्वेशन। इसको कुछ इस हिसाब से प्लस माइनस करेगा कि मेरे को कौन सी इक्वेशन मिल जाए, टारगेट इक्वेशन ये मिला। तुम कर सकते हो, अभी ये भी सिखाया प्लस माइनस। चल ये पूरी तुम आ जाओ आगे। सर ये तो सेम अच्छा नहीं है। हाँ माता बता कैसे करेगा। तेरे को वो येलो वाली चाहिए। कार्बन ग्रेफाइट किस में दिख रहा है? सर फर्स्ट में। मुझे बता, प्लस इक्वेशन 1 समझ आया? यस सर। हाइड्रोजन 2 चाहिए। 2 into equation 2 so plus। अब मीथेन गैस, राइट, तुझे कहाँ चाहिए? सर राइट साइड पे। दिया कहाँ? प्लस होना चाहिए। सर प्लस इक्वेशन 2 into 2। ये गुड़िया, वेरी गुड सहेली, दिस इज यू हैव अंडरस्टूड। अब मीथेन गैस कहाँ चाहिए माता? राइट साइड पे। कहाँ दिया है? राइट पे तो प्लस इक्वेशन 3। आ गए तुम वहीं पे? अब समझा? यस। तुमने कहा ना इक्वेशन 2 को एलिमिनेट करना, मैंने वो पकड़ लिया था तो मुझे तुम्हें उसके ऊपर फोकस करना। अब समझ आया? ऐसे ही वो भी समझ आएगा गुड़िया, वो मैं एक ही स्टेप में कर रहा था तो ठीक है गुड़िया। ओए बलविंदर, तृप्ति, निखिल, ये होमवर्क होंगे और सुनो ये सब उसी से पहुंचेगा। अब जैसे गुड़िया ये वही क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो तृप्ति पहले तुम्हें इसकी इक्वेशन लिखनी होगी, फिर उस इक्वेशन को इनमें से 1 2 3 में से निकालना होगा। समझे? दैट विल, ये तो हमने बहुत बार कर लिया, होमवर्क में जाएगा। तो अच्छा चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। चल तृप्ति, राइट, ये क्वेश्चन करते हैं। तृप्ति का माइक नहीं चल रहा मुझे लगता है। वंशिका तुम बात कर सकते हो? यस सर। अच्छा चल पड़ा। अब बहना तेरे को इक्वेशन बनानी है मोनोक्लिनिक से क्या रोमिक। तो गुड़िया बताओ कैसे करेगी इक्वेशन 1 और 2 को? मोनोक्लिनिक राइट पे दे रखी है, लेफ्ट पे दे रखी है, कहाँ चाहिए? लेफ्ट। तो प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 2 रोम्बिक कितने देती हुई है? माइनस इक्वेशन 1। दैट्स इट। अब समझा? आ गया आंसर? यस करके देख लेना। इक्वेशन 2 कितनी थी? -295.4 माइनस 290 माइनस ऑफ 294.1। तो बढ़िया -1.3 आंसर आ गया। माइनस। यस सर। लिख लेना इक्वेशन और सुनो बच्चे, इसको करना जरूर बेटे, यू मस्ट डू दैट। इसके बगैर बात नहीं बनेगी। ओके जी, जरूर करना, फायदा होगा। चलें आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? निखिल, केशी, चलूं आगे? यस सर। नो प्रॉब्लम। चलो बच्चे आगे चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आज नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट है। दिस विल बी कॉन्टिन्यूड। इसमें बड़े कॉन्सेप्ट है, अगर क्योंकि मुझे शुरू किया तो बच्चों मुझे इसको खत्म करने में नहीं, कम से कम नहीं तो 50 मिनट्स के आसपास लगेंगे, which I do not have. तो I will continue with heat of neutralization for next class. रेजोनेंस एनर्जी नेक्स्ट क्लास में खत्म कर जाऊंगा। तो फिर हम घुस जाएंगे
द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो इंटायरली एक कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो योर होमवर्क इज, आज जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इन सबको ध्यान से देखो, सबको ध्यान से देखो। तो once you do it, just wait for me, I'm just saving. तो once you do that, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बट आने वाले टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होने वाले, राइट? तो हम यहाँ पे ब्रेक लगाने वाले। We will stop here and continue from there.